provisional diagnosis is right adnexal cyst, which is most likely benign, and heavy menstrual bleeding. Cause of heavy menstrual bleeding. अब डॉक्टर शादी इसमें क्या होगी इसकी cause of heavy menstrual bleeding? अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही. Okay, Dr. Chanda, manager. First of all, I will counsel the couple regarding their diagnosis that she is having a right adnexal cyst, which is most likely benign, and she is having anemia. I will keep the patient admitted, and my aim of management is to make her symptom free. My patient is bleeding right now, and she is anemic. I will make her stop her bleeding. I will put my patient on capsule Trazamine 500 milligram TDS and tablet Punstron Fort TDS, and I will also cross match and arrange 2 pints of blood and transfuse her 2 packed cell volumes on alternate days after counseling the patient regarding the need of blood transfusion and risk of transmission of infection via blood transfusion. And during the blood transfusion, I will be vigilant for any blood transfusion reaction. And meanwhile, I will involve the multidisciplinary team in which I will involve the anesthetist and physician as well. I will evaluate my patient from the physician for her hepatitis B positivity, and although her LFTs are normal, but I will take her evaluation first before any definitive treatment. And once her anemia is corrected, her hemoglobin is optimized, then I will plan her surgery after taking fitness from the anesthetist. And for this patient, my plan of surgery will be simple cystectomy without removing her uterus and second ovary. Although my patient wants definitive treatment, but the cause of her heavy menstrual bleeding may be her adnexal cyst, or it may be due to some hormonal changes. So Will you I will plan put her endometrial biopsy or not? I think her endometrial biopsy नहीं बनती डॉक्टर शाजिया इस पेशेंट की, क्योंकि हमने इसको अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया प्रॉपर. हम ओके ओके पहले ठीक मेडिकल है ट्रीटमेंट देंगे इसको. ओके और I will do her simple cystectomy. After removing her cyst, I will write my findings in my operation notes, discharge my patient on third disparity of post your op. patient. Para 3 with no miscarriage. Can't you do unilateral salpingo-oophorectomy? Yes, I can do simple salpingo-oophorectomy if possible. Only cystectomy. Okay, I will do unilateral salpingo-oophorectomy, right-sided, and after the procedure, I will send the specimen What for is incidence of histopathology. malignancy in dermoid cyst? Incidence of malignancy in dermoid is डॉक्टर शादी मुझे नहीं पता, exactly नहीं पता, याद नहीं आ You need to search it also. रहा. Okay. It's your assignments and you will tell in before next case, or will share in group. अच्छा डॉक्टर, I will discharge my patient after her procedure on medical. I will counsel my patient to take a tablet Trazamine and Ponstron Fort in her bleeding days for 3 months regularly, and revisit after with her histopathology report. And my further plan of management will be dependent on her histopathology report. What was hemoglobin of your patient?
वो it was सॉरी 7.5 ग्राम थी, मैंने इसको 2 ब्लड लगाए। सॉरी, मैंने इसको ओरल हिमेट इस में टाइप ऑफ एनीमिया इन योर पेशेंट? टाइप मैंने नहीं करवाई, पेरिफेरल ब्लड फिल्म ही नहीं मांगी। Why was it important or not? You have forgotten all workup of anemia, and you have treated her anemia very bad. में नहीं कराना, लेकिन पेरिफेरल फिल्म करानी होती है। पिक्चर तो करानी थी, स्मीयर तो करवाना है। And even if patient is in reproductive age, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आप उसकी टाइपिंग ऑफ एनीमिया करें। इफ शी कंसीव्स एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी शी मस्ट बी अवेयर ऑफ टाइप ऑफ एनीमिया टू एक्सक्लूड हर अदर कोएग्जिस्टेंट कॉजेज। If patient is not in reproductive age, then to exclude thalassemia is not compulsory. जी बेटा। ओके, यानी कि जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो हम उसका कंप्लीट वही वाला वर्कअप पेरिफेरल लेके देखो, सीरम सीरम फेरेटिन इज नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आपके पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में सपोज 20 इयर्स है, 30 इयर्स है, जिसका कभी कोई वर्कअप नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम सीवियर आपके साथ एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये टाइप ऑफ एनीमिया और नॉट करेंगे ना? ये मैंने ना उसमें कोई हिस्ट्री है बेयर फुट वॉकिंग की, वर्म इन्फेस्टेशन, पेरिएनल लीचिंग की, देखो जब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं उसका भी एम यही होता है ना कि एचएमबी के साथ कोई को एग्जिस्टेंट कॉजेज हैं तो हम उन्हें भी रूल आउट करें। अगर आपके पेशेंट में कोई पाइका की हिस्ट्री है, वर्म इन्फेस्टेशन की है, तो फिर हम स्टूल फॉर ओवरसिस्ट एंड ओकल्ट ब्लड भी करवाएंगे ना, डिस्पाइट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और नॉट। वो फिर हम करेंगे। ऑल्दो इसमें सब कुछ नेगेटिव था, लेकिन मुझे इसका वर्कअप फिर भी सारा करवाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर हम उसकी टाइप ऑफ एनीमिया भी डिटरमिन करते हैं कि एचएमबी के साथ उसकी कोई अगर और पैथोलॉजी है तो वो भी उसकी डायग्नोज हो जाए एज पेशेंट इज क्वाइट यंग। हाँ, अगर पेशेंट फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, 50-60 इयर्स है, तो टाइप ऑफ एनीमिया शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्टिल अदर कॉजेज ऑफ एनीमिया के लिए उसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस बनती है तो वो हम करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर शादिया, इसमें मैंने ये पूछना था कि ये जो मैंने इसकी एचएमबी की ट्रीटमेंट की है वो हम यही करेंगे ना स्टेप वाइज ही, नॉन हार्मोनल, और फिर अगर नहीं वो कंट्रोल होता तो हार्मोनल पे डाल देंगे अगर हमें कोई इसकी ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिली अंदर। इसको सिंपली आप नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट देके एनीमिया ठीक करके, लेकिन एनीमिया की कोई डाइटरी काउंसलिंग नहीं की, कोई उसे पोस्ट ऑप भी मैनेजमेंट नहीं की, और 7 पे 2 आप ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर दे होगी, तो इसकी लेप्रोटमी 9 पे कर देंगे हम। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव भी है। नहीं इसकी सॉरी, इसको कम से कम जो है वो 4 पे एक्सेल लगाएं, 11 तक करें फिर इसकी। 11 तो करनी चाहिए ना। आप लेप्रोटमी कर रहे हैं, लेप्रोटमी इज मेजर प्रोसीजर। तो 4 पे एक्सेल पे भी तड़प जाते हैं कि इतना ब्लड लगाओगी इसको, फिर क्या करोगी? घर भेजोगी? अब ब्लीड कर रही है, अगर उसका कॉज ऑफ ब्लीडिंग सिस्ट ही है तो वो किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब नो हीमोग्लोबिन, मैंने उसकी ब्लीडिंग रोकी थी ना, मैंने उसको पहले ही दे दी थी मेडिसिन, और नहीं, फिर बाद में देखो अब इस पेशेंट को हम ट्रांजामीन पोस्टोन 4 दे के सिर्फ इसलिए घर नहीं भेजेंगे कि तुम अपनी हीमोग्लोबिन ठीक करके फिर वापस आ जाना, या नहीं मैं तो नहीं भेजा, मैं तो जब हमने नहीं भेजना तो क्या हम 9 हीमोग्लोबिन पे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट की 16 सेंटीमीटर सिस्ट वाले की हम लेप्रोटमी कर देंगे? 11 तक करेंगे हम उसको। 4 ठीक है, तो आप 4 या 3 के चक्कर में ना पड़ो, उसे कहो कि आई विल ऑप्टिमाइज हर हीमोग्लोबिन बाय ट्रांसफ्यूजिंग हर ब्लड और पैक्सल वॉल्यूम। बेटा भाई को भी दो। ठीक है। और डॉक्टर शादिया, ये जो मैंने हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया था, ये हमने करना है ना, चाहे उसके पहले उसकी फिजिशियन इवैल्यूएशन हमने करवानी है, और जो इलेक्टिव आपके प्रोसीजर्स होते हैं, अगर पेशेंट कोई हेपेटाइटिस की एक्यूट फेज में है तो उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है, तो यू कैन डिले योर प्रोसीजर until her acute phase is treated. हाँ, और मैंने वो भी सॉरी मैंने वो पॉइंट भी अब मिस किया कि हमने वो वाला भी मैंने बताना था कि मैंने स्टाफ को इन्फॉर्म करना है, वो एक्स्ट्रा
प्रोटेक्शन नहीं सर्जरी में, और मैं खुद भी डिफरेंशियल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डायग्नोसिस और लूंगी वो मैनेजमेंट सर्जरी बहुत ही में। पुअर है। या डॉक्टर मैनेजमेंट को तो इस तरह ना कहीं कुछ क्यों? मैंने मिस किए हैं, लेकिन उसका कुछ एनीमिया गंदा मंदा ठीक किया है, उसकी हेपेटाइटिस को कहीं नहीं लिपटाया, उसकी सर्जरी में कुछ नहीं किया, कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं किए, टाइपिंग ऑफ एनीमिया नहीं की, कितना कुछ छोड़ा है। आपदा का जो गायनी का केस पास हुआ था ना, वो ये करके, सॉरी ऑब्स का जो केस पास हुआ था, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। और आपको पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज ब्लड बॉर्न एंड डिजीज इज लाइफ थ्रेटनिंग। फिर ये साइलेंट डिजीज है, आपको सिर्फ सिरोसिस के जब होती है तब पता चलता है। तो दिस इज नॉट ए सिंपल वर्ड, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पूरे हॉस्पिटल को, पूरे स्टाफ को एट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कर रहे हो, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। हाँ जी, ये मैंने तो खुद इन बातों पे कोई माफी नहीं मिल मैंने सकती। फौरन आपको बताया कि ये मैंने मिस किया। हाँ जी, सॉरी। अच्छा डॉक्टर शादी, मुझे बस एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इसको मैंने घर भेज दिया हिस्टोपैथोलॉजी करवाने के लिए, और साथ में मैंने इसको ओरल हेमेटोमेनिक्स दे दी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दी कि वेट वगैरह कम कर लो। उसके बाद ये मतलब कि वो जो फर्दर है कि सपोज कि इसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी 9 आ गई है, सिंपल आ गई है, तो बस हमारी जो फर्दर इसकी एचएमबी की मैनेजमेंट है वो ट्रानामीन पॉन्स्टोन फोर्ट या फिर फिर आप ओसीपीज स्टेप तक ही वाइज रहेगी उसे ना, उससे फिर आगे तो इसे नहीं आप हम। स्टेप वाइज फॉलो करेंगे ना। इफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्टेबल और नॉट, वो किस चीज को रिस्पॉन्ड करती है नहीं करती, प्राइमरी उसको नहीं करती, अगर किसी चीज एक को नहीं पॉइंट मेरा करती ये है। भी था कि अगर ये नहीं रिस्पॉन्ड करती तो इसको ओसीपीज पे डाले बगैर मायरीना डायरेक्ट दे दें। नहीं, अगर तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए एक्सेप्टेबल है आप तभी दोगे ना। पैरा 3 है, लास्ट चाइल्ड बॉन्ड कितना है? 6 years। If according to her family is completed, then you can offer her Mirena. That will be of double benefit, contraceptive effect and treatment of HMB also. बट ये कि इनिशियली हम उसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ट्रांजामीन पोस्टोन फोर्ट जरूर देंगे, उसे नहीं रिस्पॉन्ड करती आप प्राइमोल्यूट देंगे। प्राइमोल्यूट को भी अगर नहीं रिस्पॉन्ड करती तो देन यू कैन कंसीडर ओसीपीज वर्सेस मायरीना। इसलिए कि ट्रीटमेंट हो सकता है वो 3 मंथ के प्राइमोल्यूट को ट्रीटमेंट दे रिस्पॉन्ड कर दे, देन व्हाई टू गिव हर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। And with contraception she is already using. Thank you बेटा। He is only using barrier methods, वो भी ऑफ एंड ऑन कोई उसके बैरियर specific नहीं है, मेथड पे सिर्फ उसका सक्सेसफुल है ना, 6 ईयर है लास्ट चाइल्ड बोर्न, देन व्हाई टू गिव हर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे, उसका प्रॉब्लम सेटल हो जाए, उसे डिस्चार्ज फ्रॉम फॉलो अप कर दें। और इस पेशेंट में एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं बनती है। नहीं बनती, शॉर्ट हिस्ट्री है, कोई फेल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है। लेस देन 40 पे आपकी इंडिकेशंस यही है ना, पेशेंट में ओबेसिटी हो, पीसीओएस हो, फैमिली हिस्ट्री हो या फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट हो। कुछ भी नहीं है कोई भी इसमें, नहीं था, फिर मैंने तो इसकी बायोप्सी नहीं। पहले हम इसे ट्रीटमेंट का ट्रायल देंगे। चलिए, थैंक यू डॉक्टर शादी।